پیش کر رہے ہو؟ نہیں، اگر ابراہیم کی بھی توحید پیش کرنا ہو تو آپ ابراہیم کے بازو میں ہو، پہلے ابراہیم کو پیش کرو پھر توحید کو پیش کرو۔ یہ ہے نبوت اور رسالت کو پیش کرنا۔ یہ آپ ابراہیم کے منصب پر آ جا رہے ہیں اور کہہ رہے توحید کا پیغام ہے ابراہیم کا، یہ کیا بات؟ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ امتیوں، تیرا کام نبی اور اللہ دونوں کو پھیلانا ہے، اور نبیوں تیرا کام اللہ کو پھیلانا ہے، اللہ کی توحید، اللہ کی مان۔ یہ نوٹ کیجئے گا۔ تو ان شعروں میں سے ایک شعر ہے جو عربی میں پڑھ دیتا ہوں مسند و مستدرک کے حوالے سے، اور آپ بھی لفظ سن کر کے صحابہ کی زبان میں رطب اللسان ہو جائیے۔ الحمدللہ فرماتے ہیں ورتا، یہ ایک دم تو کے معنی، نار الخلیل مستترن، کتنا پیارا لفظ ہے، کیف وانت فی صلبہ یحترق، سبحان او کما قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عباس کہتے ہیں، ترجمہ سنیے، یا رسول اللہ، آپ خلیل کی آگ میں چھپ کر کے موجود تھے، ورتا وارد تھے، نار الخلیل، خلیل ابراہیم خلیل اللہ کی آگ میں، مستترن ستر چھپ کر کے، وانت فی صلبہ کیف یحترق، نبی اس سے پہلے کہ کچھ کہنے والے تھے کہ یہ خود کہہ دیتے ہیں، مجھ سے پوچھئے چھپ کر کے کیسے؟ آپ ان کے پشت انور میں آپ کا نور محمدی جلواگر تھا، تو وہ آگ کیسے جلا سکتی تھی اسے؟ کیف یحترق، احتراق، جلانا، آپ ان کے صلب میں موجود تھے تو وہ آگ ان کو کیسے جلا سکتی تھی؟ کائنات جل جاتی اگر ابراہیم جل جاتے۔ دیکھا آپ نے؟ تو ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم سا ایمان پیدا، ایمان ابراہیم کا تھا، یقین تھا، چلے بھی گئے الحمدللہ۔ اس لیے پیارے نوٹ کرنا، آپ ایک بات تو یہ آپ دھیان رکھ لیجیے، توحید اور رسالت کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی تھی یہ اس کا تھوڑا پس منظر۔ ایک بات اور، حضرت ابراہیم، بڑا افسوس ہوا، میں نے یوٹیوب پر بھی دیکھا اس کو، وہ کلپ جو ہے آپ سن کر کے بس اگر زندہ ہے تو ہدایت کی دعا کر دیجیے گا ان کے لیے، اور اگر انتقال کر گئے ہیں تو حساب اللہ کہہ دیجیے گا، ان کا حساب اللہ پر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، معاذ اللہ رب العالمین، منہ سے بولنے بھی نہیں آتا لیکن ایک منصب ہے، بولنا پڑتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کافر تھے، بت پرست تھے، اس طرح کی حرکتیں کرتے، معاذ اللہ رب العالمین۔ آپ پڑھ لیجیے، اس میں ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، قرآن آپ کا کافی ہے الحمدللہ، اللہ رسول پاک آپ کے کافی ہے الحمدللہ۔ توجہ دیجیے گا، سورہ شعراء کی آیت نمبر 218 219 ایک دم زندگی بھر تک یاد رکھیں، 218 219 سورہ شعراء، شین عین را الف حمزہ، کیونکہ شورا انگلش میں تو SHURA ہی لکھتے ہیں، تو شورا اور شورا دو بھی ایک ہی ہوتا۔ 25واں پارہ میں سورہ شورا ہے، اور یہ 19واں پارے کی میں آیت پیش کر رہا ہوں، 25ویں کی پیش نہیں کر رہا ہوں۔ تو آیت نمبر 218 اور 219 بڑی اچھی تفسیر ہے اور بڑی اچھی آیت کریمہ ہے۔ ترجمہ خالی کر دیتا ہوں، ترجمہ ہی سے سمجھ میں آ جائے گا آپ کو۔ یاد رکھیے، حضرت آدم سے لے کر جتنے بھی حضرت شیش، سب سے پہلے حضرت شیش، ان سے لے کر کے جتنے بھی حضرت اسماعیل ابراہیم، ان سے لے کر کے جتنے بھی آدم سے لے کر کے جتنے بھی آئے حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ تک، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینتقل من صلب طاہر الی صلب طاہر۔ یہ مفہوم ہے جس میں کہ آپ کو نبی کے والدین کا بھی ایمان سمجھ میں آ جائے گا اور ابراہیم کے والد مکرم کا بھی ایمان سمجھ میں آپ کو آ جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم کے باپ بت پرست تھے، معاذ اللہ رب العالمین، وہ ذات میں بھی انکمپلیٹ ہوں گے، علم میں تو ہے ہی انکمپلیٹ۔ توجہ دیجیے گا اور اس کو دھیان دیں، پہلے وہ ریسرچ نہیں، سرچ کریں، شریعت میں سرچ کریں، اسلام میں سرچ کے بعد پھر ریسرچ کریں، سرچ پہلے کریں، پورا احاطہ کریں۔ توجہ دیجیے گا، اگر ابراہیم کا باپ کافر تھا معاذ اللہ رب العالمین، بتاؤ ابھی جو عباس عقیدہ دے رہے ہیں کہ آپ کے سلب کے اندر، آپ کے پشت انور میں نور محمدی ہے، اور آپ کیسے جلا سکتی ہے نور محمدی؟ اور ایک باپ کا منتقل ہونے والا نطفہ جب بیٹے میں آتا ہے تب ہی وہ سلب میں رہتا ہے۔ تو اے ابراہیم، تیرے سلب میں جو نطفہ آیا ہے وہ تیرے باپ ہی سے تو آیا ہوگا۔ تو توجہ دینا پیارے، رسول اعظم صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप मानते हैं कि इब्राहिम के बाप काफिर और बुत परस्त थे, तो वही काफिर और बुत परस्त का नुतफा इब्राहिम के अंदर भी आया, क्योंकि नस्लें बेटों से चलती है ना, नस्लें बेटों से चलती है। तो आपको मानना पड़ेगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुतफा काफिर के अंदर भी रहा है, काफिर के अंदर भी रहा है। लेकिन अब कुरान पाक सुनिए, वतक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन, उससे पहले की आयत करीमा है, अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम, ए हबीब मुकर्रम, आप पुष्ट के अंदर भी, क्या कमाल है यार, सुभान अल्लाह, बड़ी अच्छी आयत करीमा, ध्यान दीजिएगा। और इससे पहले कि वो हदीस पाक मुस्तदरक की और जामे तिर्मिज़ी वगैरह की हदीस, हज़रत अबू हुरैरा और दीगर सहाबा से जो रिवायत के, आदम अभी आए नहीं थे, तो आदम से जब पहले मुस्तफा है तो आदमी में क्यों शुमार करना है? आदम से भी पहले मुस्तफा है, नोट करना, आदम से भी पहले मुस्तफा है। तो अब तर्जमा आपको और अच्छा समझ में आएगा। या रसूल अल्लाह, ए मेरे हबीब, ए हबीब मुकर्रम, आप पुश्ते अनवर में भी खुदा की इबादत में मसरूफ रहते थे, ये अल्लाह देख रहा है। हीन तक़ूम, जिस वक्त आप खड़े होते थे। अब आप कहेंगे अरे ये क्या अकल में नहीं आ रही, तो अकल में नहीं लाओ, पैदा करो अकल को, ये खुदा का फरमान है। अरे जब आदमी पैदा होता तो खड़े होने वगैरह की बात है ना, और मोहम्मद तो आदम से पहले हैं, आदम से जब पहले हैं तो नस्ले आदम तो बाद में है, आदम पहले है ना, और ये आदम से भी पहले। नोट करें आप। तो अब आयत करीमा का तर्जुमा सुनिए, हबीब मुकर्रम, मैं देख रहा हूं कि आप खड़े होते हैं, और मैं ये भी देख रहा हूं कि आप आदम से लेकर के अब्दुल्ला तक जो मुंतकिल होते हुए आए हैं, उसको भी मैं देख रहा हूं। बतने आमना में जो आए हैं, आमना के पेट में जो आए हैं, पुश्ते अनवरे अब्दुल्लाह से, उसको भी मैं देख रहा हूं। अब आप गौर कीजिए, ये आयत करीमा मकामे मद्ह में है, नोट कीजिएगा, इसलिए कि क्या अल्लाह फरमा रहा है, तक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन, सजदा करने वालों में आप मुंतकिल हो रहे हैं, बुत परस्तों और काफिरों में नहीं कहा अल्लाह, सजदा करने वालों में। और अल्लाह जिसे साजिद कह दे वो काफिर नहीं हो सकता, अल्लाह जिसे साजिद और आबिद कह दे वो बुत परस्त नहीं हो सकता। इसी से मालूम हो गया कि असले मोहम्मद में, नोट करना, असले मोहम्मद में इब्राहिम है, और इब्राहिम के बाप भी असल है, उनके बाप भी असल है, ये असलों में आते हैं। तो अगर इब्राहिम का बाप बुत परस्त और काफिर था, तो नोट करना इस आयत करीमा का क्या मतलब होगा। रब कहे असले मोहम्मद को साजिद, उम्मत कहे काफिर। रब कहे असले मोहम्मद, मोहम्मद की असलों को साजिद और आबिद अल्लाह ताला कह रहा है, और आप कह रहे हो बुत परस्त थे। होता है क्या, कुरान पाक में सूरह अनआम में एक आयत करीमा है, गालिबन 173 में यह आयत करीमा है कि जब इब्राहिम ने अपने बाप आजर से कहा, यहीं पर मुगालता हुआ, यहीं पर मुगालता हुआ है। याद रखिएगा, तफसीर में आप जब देखिएगा तो बाप आजर नहीं है, बाप तारुख है उनके। नोट कीजिए, जीम के बाद हा खा जो है तारुख, वो क्यू वाला काफ नहीं, हैदराबाद में बोल देते, खलील को खलील बोलते, खलील को खलील बोलते। ध्यान दीजिए, तारुख ये हजरत इब्राहिम के वालिद मुकर्रम मुअज़्ज़म का नाम है, और आजर जो है ये उनका चचा है। आजर हजरत इब्राहिम का चचा, और अरब की सरजमीन पर चचा को बाप का नाम भी दे दिया जाता है, अल-अम्मु बिमंज़िलतिल अब। कई हदीसों में ऐसे पहलू मिलते हैं। खुद कुरान पाक सूरह बकरा में आप देखिए, आयत नंबर 134 या 135 में आप देखिए जाकर के अल्लाह पाक ने हजरत इब्राहिम की मौत के पसे मंजर और वाक़यात को जब पेश किया है, तो फरमाया कि जब याकूब के पास मौत का वक्त आया, तो अपने बेटों को बुलाया और कहा कि बता तू किसकी इबादत करेगा, मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बाद किसकी इबादत करेगा। तो बेटों ने कहा नाबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक, जबकि हजरत याकूब के वालिद हजरत इसहाक है, और हजरत इस्माइल चचा है, और हजरत इब्राहिम तो दादा में से है। तवज्जो दे रहे हैं आप, दादा है। लेकिन कुरान ने कहा है आपके बाप इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक की मक्के माबूद की इबादत करूंगा। क्या मतलब, बाप का जुमला दादा को भी कहा गया, बाप का जुमला चचा को भी कहा गया। तो कुरान में भी चचा बाप के माना में इस्तेमाल हुआ, अब के माना में इस्तेमाल हुआ, यहीं पर मुगालता होता। और मैं तफसीरुल आयत बिलायत किया हूं, नोट कीजिएगा, कुरान की तफसीर कुरान से मैंने की है, और इसी को आप ऑथेंटिक समझिए, ये तफसीर आला कहलाती
ہے، تفسیر الآیت بالآیت سب سے اعلیٰ منزل میں ہے، اس لیے کہ قرآن کی آیتوں میں ذوف کا پہلو نہیں، حدیث میں ذوف کا پہلو بھی ہے، حدیث میں ضعیف کا پہلو بھی ہوا کرتا ہے، لیکن قرآن کی آیتوں میں ذوف نہیں، وہ متواتر ہے، بالکل سچی ہے، وہ صادق ہی صادق ہے، وہ ہمیشہ کے لیے آتھنٹک ہے۔ نوٹ کر لیے ہوں گے آپ؟ تو حضرت ابراہیم کے والد حضرت تارخ ہیں، اور قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، اور حضرت ابراہیم کے والد کی طرف جو آزر کی نسبت کی گئی ہے وہ چچا ہے۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ یہ دو بات خاص طور سے پھیلائی گئی تھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اور آج بھی بہت سارے بڑے بڑوں سے اصل جب سنتا ہوں نا تو تکلیف ہوتی ہے۔ نوجوانوں کو تو خیر ہم ریفریش کر سکتے ہیں، وائرس وغیرہ آ جائے تو، لیکن بوڑھے لوگ، بڑے بڑے لوگ تکلیف ہو جاتی ہے، اور بولنے میں بھی مجھے ہچکچاہٹ ہوتی ہے، کیونکہ وہ لوگ بس یہ سوچنے لگتے ہیں ارے اتنے دن سے ہم لوگ غلط تھے کیا، آج آئے آپ ایسا نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے گا کہ جب صحیح اسی لیے میں بار بار بولتا ہوں، جب اللہ اور رسول کی شان کی جب بات آئے اور آپ اس سے پہلے اس شان کے خلاف نظریہ رکھے ہوئے تھے، خدا کی قسم آنکھ بند کر کے سب کچھ ڈیلیٹ کر دیجئے، شان کی بات ہے۔ شان کی جب بات آئے تو اس کو آپ آنکھ بند کر کے قبول کر لیجئے۔ 99 ایئرس تک بھی آپ اگر گمراہیت میں مبتلا رہیں گے، اور ایک دن مرنے کو ہے، اور اگر آپ شان الوہیت اور شان رسالت میں زندہ ہو کر کے مریں گے تو 1 گھنٹہ وہی کام آئے گا، 99 ایئرس بیکار ہو جائے گا۔ اس لیے آپ اپنے توحید اور اپنے رسالت اس کو مکمل مضبوطی سے اور شان کے اعتبار سے تھامے رہنا ہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو 2 بات تھی، ایک بات آپ دیکھ لیے ابراہیم کے والد کون، ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ یہ سوشل میڈیا کی سیرت ابراہیم، سیرت اسماعیل، یہ سب سنیے آپ نالج کے اعتبار سے، لیکن ان سب نالج کا آخری جملہ اگر یہ ہوتا ہے کہ جب یہ نگاہ عالم یہ ہے تو ہمارے ایمان، جان ایمان، شان ایمان محمد رسول اللہ کا عالم کیا ہوگا؟ ایسا اگر پیش کر رہے ہیں تو ایکسپٹڈ ہے، ورنہ ریجیکٹڈ ہے۔ اب ایک بات جو قرآن پاک سورہ صافات آیت نمبر 102 جو ہم نے تلاوت کی ہے، یہ توجہ سے سنیے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام۔ اب ذرا توجہ ایک دم دیجیے گا، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا واقعہ قرآن پاک سے سنیے، قرآن پاک سے سنیے۔ قرآن آپ کا، قانون اسلام آپ کا، قانون اسلام میں کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ اللہ کے محبوب بندے اور نبی کا ذکر ہو رہا ہے۔ نوٹ کریے گا، محبوب بندوں کا ذکر ہوگا۔ فرماتا ہے اللہ پاک فلما بلغ معه السعي، بلغ مانے پہنچ گئے، بالغ ہو گئے۔ مراد یہ ہے کہ سوچ و سمجھ آ گئی، ورنہ 10 سے یا 12 سال کی عمر تھی حضرت اسماعیل جب یہ واقعہ پیش آیا۔ کون سا واقعہ؟ یہ کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ زانو بزانو، شانہ بشانہ ایک باپ کے ساتھ بیٹا شعور کی منزل میں کچھ اٹھانے بیٹھنے یا سمجھنے کی منزل میں جب آ جاتا ہے تو اسی کو بولتے ہیں السعی عربی۔ فلما بلغ معه السعی، جب پہنچ گئے حضرت ابراہیم کے ساتھ بلوغیت کی منزل میں، بلوغیت سے مراد وہی سمجھ ہے، وہ عاقل بالغ نے 12 سال 10 سال کے درمیان کی بات۔ قال یا بنی، تو اپنے ایک عظیم خواب جو متواتر بار بار دیکھے تھے، ایک عظیم خواب کی بات پیش کر رہے ہیں، ایک عظیم خواب۔ یا بنی، اے میرے بیٹے، اب آ رہا ہے ہمارے سکھائی کس نے؟ اسماعیل کو آداب فرزندی، ہمارے ہیں قرآن کی اس عظیم الشان اور ڈاکٹر اقبال کی مقدس روحانیت کو پیش کرنے کے لیے توجہ دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی اقبال مندی عطا فرمائے۔ پہنچ گئے تو حضرت ابراہیم نے اپنے فرزند دلبند سعید سعادت مند سے کہا، بیٹا انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ ایک باپ کی بیٹے کی تربیت میں اور بیٹے کی ذمہ داری میں سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے وہ آرڈر ہو، اور محبت بھرے انداز میں آرڈر۔ لیکن دیکھیے آپ، واقعی اس سے ایک عقیدہ میں پہلے ہی بتا دوں آپ کو، جب اللہ تعالیٰ کسی کو نبوت اور رسالت کے لیے سلیکشن فرماتا ہے، سلیکٹ کرنا چاہتا ہے، تو اس کو بچپن ہی سے وہ اوصاف میں رکھتا ہے، بچپن ہی سے وہ وصف میں، وہ شان میں رکھتا ہے۔ کوئی ایسا کام اس سے نہیں لیتا جو کام کے آگے چل کر کے اس پر ریمارک کرے یا مار کرے، ارے
तेरे को जानता हूँ मैं बचपन में, जैसे कभी कभी बोलो हो जाए एक बार के अगर पढ़ गए अच्छा अरे जानता हूँ जब बोल देते हैं, लेकिन नहीं, जब नबी और रसूल का सिलेक्शन फरमाता अल्लाह ताला तो बचपन ही से अल्हम्दुलिल्लाह उसका ऐसी तरबियत फरमाता है, वाह वाह, जिसको आप आज की जबान में ये कहे फैजाने नजर कहेंगे आप या मकतब की करामत कह देंगे आप। तवज्जो दीजिएगा, हजरत इस्माइल है 12 साल या 10 साल की उम्र पाक है, कहते हैं बेटा मैं ज़बह कर रहा हूँ, वो होना चाहिए कि ज़बह कर रहा हूँ, ये बात तय होगी, लेकिन नहीं, फंजुर माज़ा तरा, बोल बेटा तेरी राय क्या है। ये जुमला बता रहा है कि इब्राहिम नबी है और नबी को नबी जानता है, वली को वली जानता है। नोट कीजिएगा, समझ रहे हैं ना। अल खबीसातो लिल खबीसीन, कुरान का फार्मूला सुनो, बुरों के लिए बुरे, बुरी औरतों के लिए बुरे मर्द, वत्तय्यबातो लित्तय्यबीन, और पाकीज़ा औरतों के लिए पाकीज़ा मर्द, ये कुरान का फार्मूला है। कुरान का अच्छों के लिए अच्छा, बुरों के लिए बुरा। नोट कीजिएगा, इसी से ये है जो बोलते हैं कि कौन किसके काम नहीं आता, ऐसा नहीं है। आप अच्छों के साथ रहोगे तो इंशाअल्लाह हश्र भी अच्छों के साथ होगा, बुजुर्गों के साथ रहोगे बुजुर्गों के साथ हश्र होगा। नोट कीजिए, कह रहे हैं फंजुर माज़ा तरा, क्या राय है बेटा, ऐसा मत समझना कि ये पूछ जो रहे हैं मजबूर है इब्राहिम, नहीं, मालूम है इब्राहिम को कि ये बेटा नबी है और मेरा जो नूरे मोहम्मदी मुंतकिल हो चुका है इनके अंदर। जो दे रहे हैं आप, इस्माइल से पूछते हैं ए बेटा तेरी राय क्या है। अब आदाब फर्जंदी देखिए। अच्छा, इस बात को समझाने के लिए 2-3 मिनट के अंदर मैं एक बात अहम बता दूं, याद रखिएगा, जब तक तवज्जो दीजिएगा, जब तक आपके घर में बस सिर्फ आप लोग रहें तो बस एकदम वो इक्वल माहौल रहता, लेकिन खुदा की कसम अगर उसी घर में कोई अल्लाह का नेक बंदा आ जाता है, तवज्जो दीजिएगा, अल्लाह का नेक बंदा आ जाता है तो उसमें तसव्वुरे अहले बैत जो हो जाता है, घर के लोगों का जो तसव्वुर हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह बरकतों वाला हो जाता है, रहमतों वाला हो जाता है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा, बुखारी की एक हदीस सुन लीजिए, हजरत उतबान इब्ने मालिक है, बड़े जलील कद्र सहाबी हैं, अगर मौका मिले तो उतबान अपनी औलाद का भी नाम रख देना, इतने अजीम सहाबी है, सुभान अल्लाह। आयन ता बा अलिफ नून, उतबान सहाबी हैं, ये बिल्कुल नाबीना थे, दिखता नहीं था। रात में अल्लाह नबी आजम की बारगाह में जाकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह ऐसा है मुझे लोग इमामत पर मजबूर करते हैं, मैं इमाम हूँ, आवाज अच्छी है, लोग मजबूर करते हैं, लेकिन रात में मैं मस्जिद नहीं आ सकता। आका ऐसा कीजिए, आप चलिए मेरे घर को, सुभान अल्लाह, चलिए मेरे घर को, और चलने के बाद चलिए मेरे घर को, अत्तखिज़हु मकानन युसल्ली, तवज्जो दीजिएगा, एक जगह में आप नमाज पढ़ लीजिएगा, मैं कयामत तक जब तक जिंदा रहूंगा उसी मकाम को इबादत गाह बना लूंगा, उसी मकाम को इबादत गाह बना लूंगा। नबी ने ये नहीं कहा कि ये शिर्क है, ये बिदअत है, ये बरकत का हुसूल गलत चीज है, तबर्रुक हासिल करना गलत चीज है, तवस्सुल हासिल करना गलत चीज है। बुखारी को पढ़ने वालों बुखार में मत पढ़ो, मोहब्बत में पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह रसूल आज़म आते हैं, हाथ पकड़ करके मुस्तफा की उनको लेकर के आते हैं हजरत उस्मान और कहते हैं बता कहां पर पढ़ूं, सुभान अल्लाह, बता कहां पर पढ़ूं, आइना वसल्ली मकानन, बता वो मकान कहां है कि मैं पढ़ूं, आइना मकान अल्लज़ी वसल्ली, ये जुमले हैं, कहां है वो मकान, कहां चॉइस क्या है। आका आइए ना, वहां एक मकान पर ले जाते हैं, नबी पाक है। इसी हदीस पाक से मैंने अभी रमजान में बताया था, जो तहज्जुद वगैरह के जो आप करते हैं ना, नफल वगैरह का जो एहतमाम करते हैं जमात के साथ, वो इसी हदीस पाक से है। नोट कीजिएगा, नबी पाक ने 2 रकात नमाज पढ़ी जो नफल की नमाज थी, और पीछे सारे सहाबा जमात किए, और जब पढ़ लिए दुआ की, अब चल दिए। क्या तारीख गवाह है, हजरत उतबान वहीं पर हमेशा के लिए कदम मुस्तफा को इबादत गाह बना लिया, इबादत का। ए हाजियों मुबारक हो, मकाम इब्राहिम पर वाजिबुत तवाफ पढ़ते हो ना, क्यों पढ़ते हो, वो मकाम इब्राहिम अल्लाह के महबूब बंदे और नबी से मंसूब है, बस इसलिए पढ़ते हो। नोट करना, तो तबर्रुक और बरकत का जो तसव्वुर है इस्लाम में, वो बिल्कुल हक है, और ये उनका अमल उनके साथ, इनका अमल उनके साथ, मर गया मरदूद फातिहा नदरूद, ये सब जुमले जो है ना, ये सुनने वाले जुमले हैं। नोट करना आप प्यारे, आप अल्लाह रसूल को सही मानते हो, अल्हम्दुलिल्लाह सही ही मानो, और अगर नहीं तो आप सही आलिम से, सही मतलब उलमा रब्बानियीन से कनेक्टेड रहो, दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। जो कहना ये चाह रहा था मैं, हजरत इब्राहिम, अब मकतब की करामत और फैजान नजर बताने जा रहा हूं, मकतब की करामत और फैजान नजर बताने जा रहा हूं। जब तक हजरत इब्राहिम, नोट कीजिएगा, जब तक हजरत इब्राहिम इस्माइल को लेकर मिना की वादी नहीं चले, मिना की वादी नहीं चले, बात क्या है,
जमरा उला जहां पर पहली कंकड़ी मारते हो, जमरा वुस्ता जहां पर दूसरी कंकड़ी मारते हो, जमरा अकबा जहां पर आखिरी कंकड़ी मारते हो, 7 7 7 हर जगह मारते हो। वहां पर जबह करने का पहलू नहीं लाया, वहां पर शैतान को मार रहे हैं और मारकर चले जा रहे हैं। और एक मकाम है, मकाम मज़बह, तवज्जो दीजिएगा, वहां पर हजरत इब्राहिम को लिटा रहे हैं, नोट कीजिएगा। और लिटाने से पहले ये कह रहे हैं बेटा अब बताओ, नोट कीजिएगा, बेटा अब बताओ। याद रखना अल्लाह के नेक बंदों से जो मकाम मंसूब हो जाता है वो मकाम मकतब की करामत ले लेता है या फैजान नजर खुदा ले लेता है, खुदा की नजर का फैजान होने लगता है, अल्लाह की मुकम्मल नजर मुतवातिर होने लगती है। और उस मकाम को मकतब का वो दर्जा दे दिया जाता है जिस मकतब को बाकरामत कहा जाता है। सुनो, ये फैजान नजर था या कि मकतब की करामत थी? पूछा इब्राहिम ने इस्माइल से, बेटा तेरी क्या राय है? तो पूछ, आज अगर बाप पूछता है तेरी क्या राय है, कौन सा फोन तुझे दिलाऊं, तो रुको रुको रुको, मैं पहले ओलेक्स पे देखता हूं, मैं पहले इस पे देखता हूं। टाइम लेते हो औलादो, फर्जंदे इस्माइल से इबरत हासिल करो। किसी ने नहीं सिखाया है, निस्बत नबी से है, रब ने सिखाया है, रब का फैजान नजर है, नोट करना। बेटो तवज्जो दो, उसी इस्माइल की नस्लों से आने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हो, नोट करना। इस्माइल ने कहा, या अबते, अब्बू जान, इफ़अल मा तुमर, आपको जो हुक्म दिया गया है आप कर गुजरिए। जो हुक्म दिया, एक सेकंड के लिए भी गौर फिक्र नहीं करते हैं। बेटियों तुम ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, औलादो ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। और उन औरतों को जो रुला रहे हो नौजवानों, हमें 20 लाख जोड़े चाहिए, हमें 10 लाख ये चाहिए, बेटी का सूरत ऐसी चाहिए, खूबसूरती चाहिए, हुस्न चाहिए, नोट करना, ये सब यही रह जाएंगे। अगर तेरे साथ कोई जाने वाला है और तेरे साथ कोई रहने वाला है तो वो तेरा नबी है, वो तेरा रसूल है। रसूल ने 11 शादियां की है, एक भी ऐसी शादी बता दो जो हमारे शहर हैदराबाद में खुसूसन एक भी शादी मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक हो रही हो। एक भी शादी की बात कर रहा हूं, एक भी। तुम एक शादी करते हो, 11 शादी के बराबर नहीं, हजारों अरबों खरबों शादी के बराबर मेरे आका ने 11 शादियां की है। और तुम जानते हो कौन कौन लड़की थी, कौन कौन सौजा थी? खुदा की कसम, तारीख गवाह है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक सरमदाने अरब में से हैं, शहजादी अबू बकर सिद्दीक की, उमर फारूक सरमदाने अरब में से हैं। उनकी बेटी से शादी करने के बावजूद मेरे आका ने कितने सिंपल अंदाज में, खाली तकरीर करोगे, तकरीरें सुनोगे, मीडिया में आओगे कि ये करना चाहिए, निकाह को आसान बनाओ, आसान बनाओ, प्रैक्टिकल कब करोगे? दुआ ही कर सकते हैं। मेरी आंखें सुबह शाम देख रही हैं, वो घर बर्बाद हो जाएगा जिस घर में जोड़े लिए गए हो, वो घर तबाह हो जाएगा जिस घर में दहेज का मसला हो, वो घर तबाह हो जाएगा जिसमें बहुओं को सताया जाता हो, वो घर बर्बाद हो जाएगा जिसमें हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की पामाली की जा रही हो। औरतों डरो अल्लाह से, औरतों मर्दों डरो अल्लाह से। शादियां नस्ल इंसानियत की बका का नाम है, तुम्हारी ख्वाहिश की तकमील का नाम नहीं है। नस्ल इंसानियत की बका का नाम है। निकाह रसूल की सुन्नत है, तेरी सुन्नत मत बनाओ, अपनी सुन्नत मत बनाओ। ये फर्जंदे इस्माइल है, कहते हैं अब्बू जान जो आपको हुक्म हुआ है कर गुजरे। अब बेटा कहता नहीं, मैं पहले देखूंगा, मैं पढ़ा हूं तू पढ़ा, मैं शादी करूंगा तू शादी करेगा, ये फिक्र होती है। मैं इस सिंध में एक बड़ी अच्छी बात है, हो सकता है मैं इसको कंप्लीट आइंदा जमा करूं, एक बड़ी अच्छी बात आ रही है और इससे आप लोग भी इबरत, हम सब भी इबरत पकड़े। वो बात ये है, तारीख हकीकत में सबसे पहले जो तलाक वाक़े हुई है वो इब्राहिम के घर में वाक़े हुई है। मैं थोड़ी देर चुप रहूं ताकि हम अट्रैक्ट हुआ। तारीख हकीकत, आज इतना जुल्म हो रहा है हमारी बेटियों पर कि हम सब जानते हैं, हम बोलना नहीं चाहते। अगर अंदर अंदर से आप लोग जो मुलविस हैं तो अंदर अंदर से इसको कमेंट कर लीजिएगा और किस बुनियाद पर हुई है नोट कीजिएगा। हजरत इब्राहिम है, अपने बेटे के घर हजरत इस्माइल के घर जाते हैं और इस्माइल की बीवी, नोट कीजिएगा, इस्माइल की बीवी दरवाजा को दस्तक देने के बाद जब खोलती है तो खोलने के बाद कहते हैं वो हैं, मतलब बेटे का नाम इस्माइल है तो नहीं है, नोट कीजिएगा।
लेकिन नबी की फिरासत देखिएगा। हजरत इस्माइल जब आए, पूछने लगे, कोई आए थे घर में, जैसे हम लोग आपको पूछते, हाँ आए थे। एक बुढ़ा आया, नोट करना प्यारे, जुमले में गौर करना। एक बुढ़ा आया। हजरत इस्माइल अपने वालिद गिरामी के पास जाते हैं। वालिद गिरामी गुफ्तगू करते करते, बेटा मैं आज गया था, नोट कीजिएगा, लेकिन मैं जानता हूं जो जो तुम्हारे दिल में गुजर रहे हैं, बस अपने दरवाजा को बंद कर लो। हजरत इब्राहिम भी नबी है, इस्माइल भी नबी है, नबी की बोली नबी समझ गया, बंद कर लो। आते ही सबसे पहली तलाक हजरत इस्माइल अपनी बीवी को दे देते। इब्राहिम के घर में सबसे पहली तलाक। आप तफसीरों में देखेंगे, तशरीहात इस्लाम में आप जब देखेंगे तो उसका सबब यही बताया गया है कि लफ्ज़ बुढ़ा जो है ये बेअदबी के लिए यूज होता है। आज भी बहुएं बोलती है कि बुढ़ा खांसता रहता है, मरता ही नहीं, चलो जी दूसरे घर में रहते हैं। ये सब जुमले जो बोलते हैं सुनो। और हजरत इब्राहिम ने जब कहा बेटा दरवाजा बंद कर लो, अतबा का जुमला है, आइन ता बा गोलहा, अतबा, दरवाजा बंद कर लो। उन्होंने समझा कि इनको दरवाजे से निकाल करके बंद कर लें। चुनांचे जब दूसरी शादी हुई तो उनकी वफादारी, एक बुजुर्ग शख्सियत आए थे, बड़े अच्छे थे, खूबसूरत थे, जब ये तारीफ सुना अपनी बीवी से